السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز۔ میں ہوئی ربنا سلی صاحب جان چکے ہیں خاص اس اہم خبر کے ساتھ کہ صبح بھر میں کل تمام اسکول معمول کے مطابق ہی کھلیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے افواہوں کی تردید کرتی ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں 14 اکتوبر کو کلاسز آن لائن ہوں گی۔ یو ای ٹی نے 14 اکتوبر کے لیے کلاسز آن لائن موڈ پر منتقل کر دی ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز۔ جی عاطف بتائیے۔ جی بالکل، جو اسکولوں کی بندش کے حوالے سے افواہیں چل رہی تھی اس کے حوالے سے اب وزیر تعلیم نے واضح کر دیا ہے کہ کل صبح بھر میں تمام نجی اور سرکاری اسکول شیڈیول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو احتجاج کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی اور یو ای ٹی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صرف کل کے روز جو کلاسز ہیں وہ آن لائن ہوں گی، تو آن لائن جو موڈ ہے اس پر کلاسز کو شفٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف وزیر تعلیم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کل صبح بھر میں تمام اسکول جو ہیں وہ شیڈیول کے مطابق کھلیں گے۔ اسی طریقے سے کالجز میں بھی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ 2 یونیورسٹیز جو لاہور کی ہیں ان کی جانب سے کلاسز کو آن لائن کیا گیا ہے، باقی تمام یونیورسٹیز جو ہے وہ بھی معمول کے مطابق کھلیں گی اور کلاسز بھی معمول کے مطابق ہوں گی۔ وزیر تعلیم نے واضح کر دیا ہے کہ پنجاب میں تمام نجی اور سرکاری اسکول کل معمول کے مطابق ہی کھلیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عاطف تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کا۔ خواجہ احمد حسان کی وزیراعظم کے پولیٹیکل سیکریٹری وزیر اعظم مراد خان سواطے سے ان کے والد نذیر خان سواطے کے انتقال پر تعزیت۔ سینئر لیگی رہنما نے بعد اسامیہ مرغوب احمد کے گھر جا کر ان کے اہلیہ کے لیے بھی فاتح خوانی کی۔ خواجہ احمد حسان کا مراد خان سواطے سے ان کے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ سینئر لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ نذیر خان سواطے مسلم لیگ نواز کا قیمتی سرمایہ اور ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ علاقے کے عوام کے لیے مرحوم کی بہت زیادہ خدمات تھی، جبکہ خواجہ احمد حسان نے وائس چیئرمین ایل میاں مرغوب احمد سے ان کی اہلیہ کی وفات پر تعزیت کی۔ اس موقع پر سید توصیف شاہ، شہباز غوث اور طارق سہیل بٹ بھی موجود تھے۔ پنجاب ماس انٹرنیشنل فیسٹیول 2025 کا چوتھا روز پاکستان کے نامور فنکاروں کے ساتھ دنیا کے 7 ممالک سے فنکاروں کی شرکت، شہریوں کی بڑی تعداد الحمرا آرٹ کونسل پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک اچھا اقدام ہے، ایسے فیسٹیول کا انعقاد ہونا چاہیے۔ مزید شہری کیا کہتے ہیں جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی بتائیے عبدالرحمان۔ جی بالکل، اس وقت میں لاہور الحمرا آرٹ کونسل میں موجود ہوں، جہاں ماس انٹرنیشنل فیسٹیول 2025 جاری ہے، جہاں ملک پاکستان سے فنکار تو پارٹیسپیٹ کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے 7 ممالک کے فنکار اپنی ثقافت کو پاکستان کی ثقافت کے ساتھ ملا کر دکھا رہے ہیں، اور شائقین کی اور شہریوں کی بڑی تعداد اس وقت اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں جو اس فیسٹیول میں پارٹیسپیٹ کریں۔ جی بتائیے گا، پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے، کیسا دیکھ رہی ہیں آپ اسے؟ اٹس ویری انٹرٹیننگ، بہت اچھا فیملی ٹائم ہے، بہت سارے سٹالز لگے ہوئے ہیں، اچھی پرفارمنسز ہو رہی ہیں، اور اسپیشلی یہ کہ فری رش ہے اور بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، اور ماشاءاللہ اٹس ویری نائس۔ اتنا اچھا انیشیٹو ہے، اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ ملک کے اندر سے بھی لوگ پرفارم کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی پرفارم کر رہے ہیں، اور وی ہیو ریئلی انجوائڈ، اور بہت اچھے تھیمز کے اوپر انہوں نے پلے بھی کیے ہیں، تھیٹر دیکھ کے بہت انجوائے کیا، سٹالز سے کھانا کھا کے بھی بہت مزہ آیا، تو تھینک یو سو مچ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کون کون سے تھیٹر کو دیکھا ہے، کب سے آ رہے ہیں، آج پہلا دن ہے یا اس سے پہلے بھی آپ نے آ کے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ آج پہلا دن ہے، انجوائے کیا میں نے، ابھی آئے تھے تھوڑی دیر انجوائے، اور ٹکٹ فری ہے یہاں پہ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہر قسم کے شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس فیسٹیول میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ جی بتائیے گا، کس نظر سے دیکھتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے کیسا انیشیٹو ہے فیسٹیول 2025 ماس انٹرنیشنل فیسٹیول؟ بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے کہ پنجاب گورنمنٹ بہت اچھے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے، اور میرا قانون سے تعلق ہے، میں قانون کا طالب علم، ہم سارا دن بڑی ہیکٹک روٹین سے گزرتے ہیں، تو میں اپنے گھر کی طرف واپس جا رہا تھا تو مجھے یہاں پہ نظر آیا الحمرا ہال میں اتنا اچھا ایونٹ ہو رہا ہے، تو میں نے رک کر اپنے ذہنی سکون کے لیے میں نے یہاں پہ آ کے میں نے دیکھا یہاں پہ سٹالز لگے ہیں، یہاں پہ نیشنل اور انٹرنیشنل جو آرٹسٹ ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں، جو کہ بہت اچھا ہے۔ انٹری فری ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے، ہر بندہ آ سکتا ہے۔
अमीर गरीब हर कोई जी बिल्कुल, एंट्री भी फ्री है और इसके साथ साथ शहरियों के लिए यहाँ डिफरेंट खाने के और शॉपिंग के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए हैं ताकि शहरी इंटरनेशनल फेस्टिवल से तो महसूस हो ही हो, लेकिन उसके साथ साथ अपने मजे के मनपसंद खाने भी, जो कि लाहौरियों की हमेशा से रवायत रही है अच्छी और मजेदार खानों की, तो यहाँ लातादाद फेस्टिवल्स भी लगाए गए हैं और ये फेस्टिवल अभी मजीद 15 तारीख तक जारी रहेगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मेयारी तालीम तहकीक में जिद्दत और तलबा की रहनुमाई का अज़्म। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेस में नए तलबा के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर नईम नकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेस में फाल 2025 के नए तलबा के लिए ओरिएंटेशन तकरीब सदारत वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर नईम नकी ने की। फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, अलाइड हेल्थ साइंसेज और सोशल साइंसेज के नए तलबा की भरपूर शिरकत। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ शोबाजात के नुमाइंदों ने अपने प्रोग्राम्स का तारुफ पेश किया। इम्तिहानी शोबे ने तलबा को इम्तिहानी कवायद ज़वाबत से आगाह किया। वाइस चांसलर मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर नईम नकी का कहना था, ये इदारा लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से तरक्की करते हुए एक जदीद जामे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बड़ी मेहनतें की और यहाँ पे पहुँचे और अब माशाल्लाह टोटली एकेडमिक एक्सीलेंस के ऊपर फोकस है हमारा, और सिलेक्शन में भी पूरी हमारी कोशिश होती है कि मेरिट बेस्ड हो। तो इट्स अ वंडरफुल डे फॉर अस बिकॉज हमारे साथ नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। वी सो हैप्पी अबाउट। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नईम मुबारक और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर असद अहमद खान का कहना था, UBAS में हमारे तलबा इत्तमाद, हमदर्दी और तख्लीकी सोच के साथ अमली दुनिया में कदम रखते हैं। हमारे पास UBAS एक फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटी है जिसका फोकस हेल्थ और अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंसेज है। हमारा तालीमी मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है इस लिहाज से कि हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और नए करिकुलम के मुताबिक तलबा को उनकी तालीमी ज़रूरियात के मुताबिक, जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक उनको इल्मी और अमली महारतों में ट्रेन कर रहे हैं। नए आने वाले तलबा ने युबास के इंतखाब को काबिल फ़ख्र करार दिया। काफ़ी अच्छी फैकल्टी लगी है मुझे और काफ़ी मोटिवेटेड फीलिंग आ रही है, और ऑब्वियसली बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और सर्विसेज बहुत हैं, फैसिलिटीज़ बहुत है, तो इंशाल्लाह आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि अच्छा टाइम गुजरेगा इनके साथ। ओरिएंटेशन में हमें टीचर्स ने ये बताया है कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है और उसके अलावा सारे में जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में हमें गाइड किया गया है। फार्मेसी प्रैक्टिस में PhD प्रोग्राम के आगाज का भी ऐलान किया गया। इस प्रोग्राम के लिए 51 दरख्वास्तों में से सिर्फ 11 बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। सूबाई काबीना में तौसीर 2 मज़ीद वज़रा ने हल्फ उठा लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल और मंशाला भट्ट ने बतौर सूबाई वज़ीर हल्फ उठाया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने दोनों वज़रा से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में मुनक्किद होने वाली खबरदारी की तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुईं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने दोनों वज़रा से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में मुनक्किद होने वाली हल्फ बर्दारी की तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, डेप्यूटी स्पीकर इकबाल चन्नर, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सूबाई काबीना ने शिरकत की। नई तैनात होने वाली वज़ीर आला के एडवाइज़र अनूशे रहमान ने भी तकरीब में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हल्फ का तकर्रुनामा पढ़कर सुनाया। मैं सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गवर्नर हाउस में होने वाली हल्फ बर्दारी की तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। पंजाब असम्बली में पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर। असम्बली इजलास में अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कायम मुकाम स्पीकर सहीर इकबाल ने अपोजिशन की एक न सुनी। शोर शराबे के बावजूद पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल की मंजूरी दे दी। अफगान जारियत के खिलाफ ऐवान में मुसल्लह अफवाज के साथ भरपूर इज़हार यकजहती। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया।
पंजाब असम्बली का कायम मुकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत इजलास 3 घंटे से ज़ायद ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास के दौरान बल्दियाती इदारों का मुसविदा कानून कसरत राय से मंजूर, अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन अरकान की बिल की मंजूरी के दौरान ऐवान में शदीद हंगामा रही, एजेंडे की कापियाँ फाड़ दी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव करने की कोशिश की। Mr. Speaker, I move that the Punjab Local Government Bill 2025 be passed. The motion moved and the question is that the Punjab Local Government Bill 2025 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it, the bill is passed. पंजाब असम्बली के इजलास में हुकूमती अरकान अफगान जारियत के खिलाफ जमकर बोले और कहा कि तालिबान वजीर खारजा भारत गया तो पाकिस्तान की सरहदों पर हमला किया गया। भारत पर वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अगर उसे शिकस्त दे सकते हैं तो अफगानिस्तान के हमलों का भी भरपूर जवाब देंगे। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन ने पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। लोकल गवर्नमेंट बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। नए कानून के तहत बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर और बराह रास्त तरीके से होंगे, जबकि यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का इंतखाब शो ऑफ हैंड से किया जाएगा। पंजाब असम्बली से लोकल गवर्नमेंट बिल की मंजूरी बल्दियाती सियासत में अहम कदम। नए कानून के तहत बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर और बराह रास्त तरीके से होंगे। हर यूनियन कौंसिल में 9 जनरल मेंबर्स जबकि 4 मखसूस नशिस्तें मुकर्रर। बिल के मुताबिक बल्दियाती इदारों को बजट की तैयारी और मंजूरी और टैक्स फीस वसूली का इख्तियार भी होगा। कचरे की सफाई, नदी नालों, तालाबों की खुदाई और साफ पानी की फरहमी बल्दिया की जिम्मेदारी होगी। बड़े शहरों में टाउन कारपोरेशन जबकि 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में म्यूनिसिपल कारपोरेशंस बनाई जाएंगी। 25,000 से 2 लाख तक आबादी वाले शहरों में म्यूनिसिपल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। देही इलाकों या 25,000 से कम वाली आबादियों में तहसील कौंसल्स कायम की जाएंगी। यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब शो ऑफ हैंड्स के जरिए किया जाएगा। नए कानून के मुताबिक वजीर आला किसी भी वक्त मौजूदा बल्दियाती हदूद में तब्दीली का हुक्म दे सकेंगे। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब का रायवन इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान है। मरीम नवाज की 1 नवंबर से इज्तिमा के ख़त्म होने तक खुसूसी सफाई मुहिम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, सिद्क़ के दिल से आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। तबलीगी जमात की डेलीगेशन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अवामी खिदमत के जज्बे को खूब सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मरकज़ तबलीगी जमात के शूरा अरकान डॉक्टर नदीम अशरफ, मौलाना अमजद फारूक, मौलाना मोहम्मद अमीर और इम्तियाज़ अहमद गनी समेत दीगर की मुलाकात। वज़ीर आला की रायवन इज्तिमा के लिए तमाम मुमकिन सहूलतें और बेहतरीन इंतजामात की यकीन दहानी। रायवन जाने वाले रास्तों पर फौरी पैचवर्क का हुक्म। मरियम नवाज का रायवन इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से इलेक्ट्रो बस रायवन तक चलाई जाएगी। मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, लेकिन बाज़ौक़ात आवाम के लिए बोलना ज़रूरी होता है। सदके दिल से रज़ाए इलाही के लिए आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। खिदमत का जज्बा सच्चा है, अल्लाह ताला गैब से वसाइल मुहैया करेगा। अकाबरीन तबलीगी जमात का कहना था, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हाथ ना फैलाना काबिल तहसीन अमल है। कोई छोटे शहर में ग्रीन बस जैसी सर्विस का सोच नहीं सकता था। मरियम नवाज बहुत खिदमत कर रही हैं, शहरों को ऐसा साफ कभी नहीं देखा। तबलीगी जमात के वफ्द की वज़ीर आला मरियम नवाज के अवाम खिदमात की तहसीन कामयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी कहती हैं, गंडापुर पहले वज़ीर आला हैं जो 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाई में कुर्बान हुए हैं। सुहेल अफरीदी सिफारिशी नहीं बल्कि फ़र्शी वज़ीर आला हैं। सुहेल अफरीदी को एक कश्ती का मुकाबला जीत कर नहीं आए, डिनोटिफाई हुए, बग़ैर वज़ीर आला के इंतखाब गैर आइनी है। मौसूफ जो हैं उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़कें लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके। और सबसे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फ़र्शी वज़ीर आला हैं, आप फ़र्शी सलाम कर कर के आए हैं अलीमा बाजी को। और ये पाकिस्तान की शायद दुनिया की तारीख़ का वाहिद एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। और एक वज़ीर आला जो है वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, किसी जो है वजह से वो अपनी सीट से नहीं उतरा। वो सिर्फ 2 घरेलू ख़वातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है। और उसके बाद जो है वो ये बातें करना कि मैं अपने ज़ोरे बाजू पे आया हूँ, तो मुझे हंसी आ गई कि भाईजान कौन सा रेसलिंग का जो है वो मुकाबला जीत के आए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है
کہ پہلے بھی مطلب یہی حالات تھے. آج خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی کے حالات ہیں, جس طرح سے افغانستان کے ساتھ جو افغانستان پاکستان کے اندر در اندازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو اس کو مؤثر ترین جواب دیا جا رہا ہے پاک فوج کی طرف سے, وہاں پر اس صوبے کے وزیر اعلیٰ, ویسے تو وہ الیکٹ نہیں ہوئے کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ پہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا تو دوسرا وزیر اعلیٰ کہاں سے آ گیا. انہوں نے ہر چیز کو نا وہ سمجھ لیا زمان پارک ہے, ادھر اس کو ادھر بٹھا دو, اس کو ادھر بٹھا دو, اور ان کی مرضی چلے گی. قانون اور یہ کوئی موم کی ناک نہیں ہے جس کو آپ ادھر سے ادھر جو ہے وہ کھینچ لیں گے. اور یہ وہ مزیدار چیز اس میں یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بیگم کے کہنے پہ لگایا گیا اور دوسرا وزیر اعلیٰ گنڈا پور باجی کے کہنے پہ ہٹا دیا گیا. تو مطلب دوسروں کو موروثیت کی باتیں کرنے والے اور دوسروں کو جو ہے وہ جمہوریت نہ ہونے کا تانا دینے والے, ان کا عالم یہ ہے کہ دو بیگمات, دو باجیاں جو ہیں, ان کی لڑائی میں وزیر اعلیٰ شوقیہ چینج ہوتے ہیں بھائی.